Hey, you, welcome back. It's Jyoti. Kachalai was happening. I had to get to this. I got DM'd this video. And I think the last one that I reacted to from Sham Sharma was, I don't know, every time I react to these videos, I get a lot of hate, but the hate usually comes from those people who are unwilling to see the truth. Do you know what I mean? And it doesn't matter to me. But I feel like this should be talked about. Yeah, it was the Shima Kermani fake Odyssey claims and the appropriation of Hindu culture and Indian culture. So wo hua tha. Oh yeah, and in this one, there's another video you will probably see before this that I have already reacted to from Sham Sharma. But yeah, y'all are seemingly enjoying the reactions to these videos. ये वाला बहुत important है because एक तो I have been saying the same thing for a while now. I mean in my other videos around these topics that suddenly Indus Water Treaty abeyance में डाल दी गई. तो सडनली सब इंडस सिविलाइजेशन को क्लेम करने के लिए आ गए. इट्स सो हिलेरियस द आइडेंटिटी क्राइसिस. अभी से पहले तो आपका कोई अबू अबू करके कुछ आपका फर्स्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मान रहे थे आप. some stupid Mughal person, who knows. And then somewhere down the line you started trying to be Turkish. And the Turks were like, no, y'all are not our people. And now they are trying to be Indus water civilization. I heard the guy say, that guy with the weird beard, I just can't stand him, whoever he is. I saw some clip of him. He can't even say Indus Valley civilization. उतना भी नहीं पता. Indus water civilization. पता चल रहा है आपके दिमाग में subconsciously क्या बैठा हुआ है कि हमें Indus water treaty का वो करना है. We have to take the fight and fight the fight internationally. So anyway, I was waiting for a video like this to come out on the topic of this newfound love for the Indus Valley civilization that Pakistan seems to have. And I was watching this very interesting podcast, Kushal, this one, Mehra's, the Charvak podcast, if you guys know. He was talking to this lady who works in the ASI, I think, and that's the Archaeological Survey of India. And she was kind of dismantling this whole theory and all of that and talking about the main actual cities. You may think that Mohenjo-daro and Harappa were the only, no, they were the very small parts of the Indus Valley civilization. The bigger cities were others, which are very much in India, and the entire civilization is actually Indus Saraswati civilization, or just the Saraswati civilization, if I remember correctly. So, wo Charvak podcast mein I was watching and I found those details very interesting because they came from someone who's been on ground excavating those sites, right? So it's not some second, third party information. But anyway, if y'all, I'll try and see if I can find the link to that episode and I'll put it in the description. Otherwise, just go and look up the Charvak podcast. Usme milega aapko. So yeah, theek hai. So only Sham Sharma can troll people the way he does, and that's why I enjoy watching his videos on these kind of topics. 1.25 pe dekhenge. It's 21 minutes long. So it says Pakistan meltdown over Indus Water Treaty explained why Pakistan is scared. Obviously they'll be scared because last year तो बहुत brag कर रहे थे कि ओ तो क्या हुआ अगर abeyance में डाली है, आपके कुछ डैम वैम नहीं है, उनको तो सालों लगेंगे बनने में. हाँ ठीक है साल लग जाएंगे, पर ठीक है, हम ऑन ऑफ करेंगे पानी आपको पता नहीं चलेगा. इट्स ओके, वी डोंट केयर. What was that line that this one I think Ajit Doval Saab has said that कहीं तो सुना था, धुरंधर में ही था या कहाँ था कि nations must have long memories, ऐसा कुछ तो भी था. So patience is the name of the game. And जो काम करना था पाकिस्तान को अपना पानी पानी के वो सोर्सेज डाइवर्सिफाई करना और ये वो और प्रिपेयर फॉर अ बैड सिचुएशन, वो तो उन्होंने किया नहीं क्योंकि उनके पैसे तो सब आर्मी वाले उनके स्विस बैंक अकाउंट्स में भेज चुके हैं. सो दे हैव zero money left for the development of their own country, and that development is a non-existent thing, does not even happen. So now they're going to cry. In this video, we discuss Pakistan's identity crisis. We've already discussed that in the last, that Shima Karmani video. If you haven't seen that, go watch that. I got a lot of hate after that, but it's just hate from people who don't want to admit to the truth, but it's fine. First, it tried to identify with the Arab world, then with Turkey, but neither fully accepted that image. We also talk about claims that Pakistan has increasingly associated various cultural traditions with its own heritage, and more recently has claimed links to the Indus Valley and Harappan civilization. By the way, we were talking about how Holi was celebrated and Basant Panchami, and people were like, oh, it is part of the land, it is part of the culture, and the Hindus were in that land and they still are there. First of all, those Hindus are down from 15 to like less than 1% in Pakistan. So let's not talk about how the Hindus in Pakistan are doing. But they were like, oh, the
the Holi was celebrated by Hindu students in the university. First of all, they were attacked and they were humiliated for celebrating it. Nobody comes to the follow-up stories. And are you telling me that your people are not putting Varmala and doing Aarti and all of that in your weddings? Come on, come on. None of that is part of the place. And if it's part of the place, then why do your leaders go around thumping their chest saying, we are totally different from Hindus in culture and tradition. We are totally separate people and all that nonsense. Like, pick a lane, pick one lane. If your representatives believe one thing and your country was founded on one notion and one belief, then stick to that belief. Now don't try and say कि oh हमारा सबका culture है और हम सब वहीं पे पले बड़े हैं and all that nonsense. Like, just pick a lane, pick a lane and then stick to your lane. को बहुत वो होता है. Anyway, ठीक है, let's come. And heritage, and more recently has claimed links to the Indus Valley and Harappan civilization. We then discussed the debate around the Indus Water Treaty, how India suspended aspects of the treaty after Pakistan sponsored terrorist attacks, and the arguments over water sharing between the two countries. By the way, the NIA just released the supplement charge sheet for the Pahalgam terror attack, detailing everyone who was behind the attack. Hafiz Syed, I think, is the main accused, and all the proofs and everything is in there. So for all those Buddhijeevi Pakistanis saying, oh, India has not provided, it has. You just haven't opened your eyes and seen what's happening in the real world. Okay, we also cover India's plans to use more of its own share of river water within the country and the political reactions and public debates that have followed in Pakistan. Hilarious. Okay, let's watch. Chalo, 1.25 पे 1, 2, 3 play. देखिए, आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने पर्सनल फायदे के लिए रोज एक नया अब्बू बना लेता है. कभी अरबी अब्बू, कभी तुर्किश अब्बू, कभी ईरानियन अब्बू, कभी चाइनीज अब्बू. लेकिन आपको शायद ये जानकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होने वाला है कि आजकल उनके एक नए अब्बू हैं और वो अब्बू है इंडस वैली सिविलाइजेशन. And if you go back into history, the Indus water This civilization. guy, man, I want to Whenever slap I go him. abroad, Ugh. I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley Someone civilization. slap ये that कह रहे beard हैं off कि his इनके रूट्स face. वैदिक सिविलाइजेशन में है. Hilarious. As Pakistanis, we ask a question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. क्या बात कर रहे हैं? अबे यार, ये प्लैनेट ऑफ द एप्स जैसी शक्ल वाले आदमी से इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बोला जाता नहीं है ठीक से. क्लेम कैसे कर लेंगे साले ये? और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन Indus को water और भी civilization. appropriate करने के लिए ये लोग बसंत पंचमी मना रहे हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 3 दिन के बसंत फेस्टिवल की वजह से पूरे लाहौर शहर में 4 से 6 बिलियन रुपीस की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है. Oh my God. होली खेल रहे Pick a हैं. lane, These are Holi guys. celebrations in Pakistan. Some university students held the biggest Holi event at the Mobbed Quaid by Azam University. Islamists for Indian style celebrating शादी कर रहे Holi. That also happened. I can't look at this stuff again. It's just so. जो देश बिन कासिम को फर्स्ट पाकिस्तानी मानता है ऑफिशियली, वो अचानक से 5000 साल पुरानी लेगेसी क्लेम कर रहा है. और मैं This सीक्रेट guy. बताता हूँ ये सब क्यों हो रहा है. ये सब हो रहा है इसलिए क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेयंस रखा हुआ है, यानी बेसिकली सस्पेंड किया हुआ है. इस वजह से इनकी So- फटी पड़ी है और इनकी धमकियां सुनिए. मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता. मोदी कहता अंधेरे है में कौन आते कि हैं? हमारा पानी रोकेगा. जनाब स्पीकर, मोदी की ये भूल है. पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है. To Pakistan under the Indus Water Treaty would तो करो have ना. profound consequences for regional peace and security. We, in all sincerity, are ready to talk on all issues, what we call composite dialogues, but it takes two to tango. अब यार, ये धमकी में भी भीख मांग रहे हैं कि प्लीज साथ में काम कर लो. तो आज के वीडियो में हम Also, just. धमकी में भी भीख मांग रहे हैं. Okay, so I have heard quite a few of their ministers in their speeches or their whatever things say that we will क्या हाथ काट देंगे या कुछ भी जो भी whatever archaic language they use, tribal language. So I'm just sitting here thinking कि करो ना, who is stopping you? अब इतनी बार आप धमकी देके भी कुछ नहीं करते हो तो मतलब clowns all of them play. देखेंगे कि क्यों पाकिस्तानी आजकल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बच्चे अपने आप को बोल रहे हैं और क्यों इंडस वाटर ट्रीटी पे पाकिस्तानियों का इतना बुरा मेल्टडाउन हो रहा है. और फाइनली क्यों इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भारत के लिए एक कमाल का लेवरेज है, इनक्रेडिबल लेवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ. आइए इसके बारे में बात करते हैं. We waited long enough to put it in abeyance. We should have put it in abeyance like 10 years ago. सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड में. तो डिक्शनरी में भुखमरी का पर्यायवाची शब्द यानी पाकिस्तान आजकल अपने आप को इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहा है. मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी नाम आप रख लें, लेकिन बेसिकली वी आर इंडस. वैसे जिस चीज में सिविलाइज्ड वर्ड लग जाए
उसका पाकिस्तान से क्या रिश्ता? बट एनीवे लेट्स कंटिन्यू। ये लोग आज बोल रहे हैं कि ये इंडस की औलादे हैं। बेटा शक्ल देख लो, चिंपैंजी की औलाद ज्यादा लगते हो। ये अपने आप को 7000 साल से पुराना मानते हैं आजकल। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हम वो दुनिया Who की is this सबसे guy? पुरानी 7000 पुरानी सिविलाइजेशन जो मेहरगढ़ से स्टार्ट हुई थी, उसके बासी हैं, उसके बच्चे हैं। और कमाल की बात यह है कि You are 1998 literally में एक 70 document years publish किया था old, पाकिस्तानी so गवर्नमेंट chill ने out. 50 इयर्स ऑफ पाकिस्तान सेलिब्रेट करने के लिए। उस डॉक्यूमेंट में मोहम्मद बिन अरे कासिम को फर्स्ट पाकिस्तानी मेंशन किया गया है। तो जब मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट पाकिस्तानी है, तो इन बकरी प्रेमियों को कोई समझाओ कि ये फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे क्लेम कर सकते हैं? बट फिर भी कर रहे हैं। देखिए क्रिस्टल क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट है कि हम मोंजोदड़ो से, बैरगढ़ से, हड़प्पा में जो लोग आकर बसते थे, उन्हीं बस्तियों में आ जाके जो लोग रहते थे, हम वही लोग हैं। हो सकता है इनको समझ में आ गया हो कि भाई बच्चाबाजी, बकरीबाजी, It's so funny. मार्केटों में फटना, ये सब कल्चर नहीं होता। तो हमको कहीं और से कल्चर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्यों ना भारत का ही चोरी कर लें? यहाँ तक कि इतना चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस्लामिक जमहूरिया इंडस नाम दे रहे हैं। तो हमारा ताल्लुक, हमने नाम इस तरह का रख के पाकिस्तान, जिसका कि कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पाकिस्तान नाम बुरा लगता है, इसको चेंज कर दें, इसको भी रख लें, लेकिन अपना तारीख से रिश्ता ना कटें और नाम में कुछ ऐसा एडिशन करें कि पाकिस्तान जो है, आप इस्लामिक जमहूरिया इंडस कर लें, चलें, आपको अगर कुछ और नहीं आपको पसंद आता। साले ये कल्चर है, इसको वक्फ की जमीन Oh my God, are you ये लोग serious? अपने आप को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बच्चे की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। When we identify ourselves as Pakistanis, guy, though, I we just ask want the to- question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts. This is why that we are Shima the people of Kermani Indus was Valley saying all that civilization. सालों, nonsense. तुमको एक बात मैं समझा दूं कि तुम She was कैसे also इंडस वैली paid off. सिविलाइजेशन क्लेम करोगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रीस्ट किंग तो भारत में बैठे हुए हैं। Oh, I like it. Loves it. Pause. This is why Shima Kermani was saying all that nonsense on her podcast. Ki, oh, hamari civilization ki dancing girl and all that nonsense. I mean, dude, it's actually rich of me to assume that she was paid to say all that. She was probably under threat and had to say it. Same like whoever this guy in the purple shirt is. Seriously, you want to now name your country after it? All these years, all these decades, you were very happy to disassociate from anything. Anyway, you know, I just अब इंडिया ही नाम रख लो ना, इंडस से इंडिया आया था, अब इंडिया ही नाम रख लो अपना, उसमें क्या है? एनीवे यू आर 1 2 3 प्ले। देखिए ये सारे मेल्टडाउन की सबसे पहली बात आप ये समझिए कि ये एक नंबर की हिपोक्रेसी है। देखिए हिपोक्रेसी जो है वो पाकिस्तानियों के खून में बसती है। मोहम्मद अली जिन्ना एक इंग्लिश जेंटलमैन की तरह जिंदगी जीता था, शराब पीता था, पोक खाता था, चेन स्मोकिंग करता था, फिर भी उसने इस्लामिक डॉक्ट्रिन के हिसाब से पाकिस्तान And his daughter lived in Bombay. ने अपनी इमेज एक सोशलिस्ट मॉडर्नाइजर की तरह बना रखी थी, बट उसके The whole बावजूद life. उसने अहमदिया को कॉन्स्टिट्यूशनली इस्लाम के बाहर डिक्लेयर करके रखा हुआ था। और अहमदिया आज भी प्राइम मिनिस्टर और So प्रेसिडेंट नहीं बन sad. सकते पाकिस्तान के। उनकी बेटी बेनजीर अली भुट्टो जो अपने आप को वेस्ट में लिबरल की तरह दिखाया करती थी, जबकि वो खुद पाकिस्तानी She was तालिबान की another- प्रिंसिपल इंक्यूबेटर थी। दूसरी बात इनकी Another हिपोक्रेसी आप fraud देखिए कि ये of a अपने आप को woman. अचानक से इंडस वैली की औलादे बोल रहे हैं, लेकिन इनकी मिसाइल्स का नाम आज भी दहिर नहीं है, हिंदुशाही नहीं है, रंजीत नहीं है, पोरस नहीं है। इनके मिसाइल्स के नाम है घोरी और गजनी। इनका पहला सिटीजन राजा पोरस नहीं थे या भगवान राम के बेटे लव और कुश नहीं थे जिनके नाम पर लाहौर शहर का नाम रखा गया है। पाकिस्तान का फर्स्ट सिटीजन मोहम्मद बिन कासिम है। इसीलिए वीएस नैपॉल ने अपनी किताब बियॉन्ड बिलीफ में ऑब्जर्व किया था कि एक पाकिस्तानी के लिए उसकी जमीन का कोई रिलीजियस या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है ही नहीं, उसके रेलिक्स की, उसकी हिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं। पाकिस्तानी के लिए सिर्फ अरेबिया की मिट्टी सेक्रेट है और कुछ भी नहीं। और अल्टीमेटली ये सारा जो नाटक हो रहा है ना कि हम भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की औलादे हैं, इस पूरे नाटक का सिर्फ एक रीजन है और वो है इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? भारत का जब पार्टीशन हुआ था, नाटक तो इस is the partition right में रिवर्स word. का भी पार्टीशन हुआ था, खासकर इंडस वाटर सिस्टम का। ये रिवर सिस्टम दुनिया की सबसे पुरानी और इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स में से एक है, जिसमें 6 नदियां हैं। और इस ट्रीटी में ये जो रिवर सिस्टम है, इसका मैक्सिमम पानी पाकिस्तान को दिया गया। 80% पानी पाकिस्तान के पास जाता है, सिर्फ 20% पानी भारत के पास है। जबकि भारत का लैंड मास ज्यादा बड़ा है, भारत का पॉपुलेशन ज्यादा बड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? वेल देखिए उस समय इंचार्ज देश के नेहरू जी थे। और अगर आप 1962 वॉर से वाकिफ हैं, अगर आप पाकिस्तान के पास कैसे गया इससे वाकिफ है, तो आपको पता होगा कि नेहरू जी को हमारे दुश्मन देशों को जमीन और पानी बांटने में उतना ही मजा आता था जितना एप्स्टीन को सेलिब्रिटीज को लड़कियां बांटने में मजा आता था। तो भारत के पास सिर्फ रावी ब्यास और सतलज रहेगा और पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चिनाब मिलेंगे पूरे कंट्रोल के साथ। तो इंडिया ने इतना बड़ा दिल दिखा के 80% रिवर सिस्टम का पानी पाकिस्तान को दे दिया इस ट्रीटी के तहत। और उसके बदले में इंडिया को क्या मिला? ट्रीटी साइन हुई 1960 में, 1965 में पाकिस्तान ने वॉर छेड़ दिया, 1971 में वॉर हुआ, 1999 में वॉर हुआ। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसके साथ साथ हंड्रेड्स ऑफ टेरर अटैक्स भी हुए, इंक्लूडिंग 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 मुंबई अटैक, 2016 पठानकोट अटैक, उरी अटैक, 2019 पुलवामा अटैक, 2025 पहलगाम अटैक। उसके साथ साथ too long to put it in a कश्मीर में base. पिछले 20-25 सालों में। तो ये सब देखने के बाद फाइनली जब एक ऐसी गवर्नमेंट सेंटर में आई जिसके पास शायद थोड़ा सा दिमाग था और थोड़ा सा जिगरा था, तो पहलगाम के अटैक के सिर्फ एक दिन के बाद इंडिया ने अनाउंस किया कि वो 1960 की ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये इमीडिएट इफेक्ट से अबेयंस में रखी जाएगी, यानी बेसिकली सस्पेंड कर दी जाएगी जब तक
पाकिस्तान क्रेडिबली और इररिवोकेबली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सपोर्ट बंद करने की गारंटी वो ना तो दे। वो और इससे करेंगे पाकिस्तान नहीं। की इतनी हिली क्यों, ये इतना बड़ा डील क्यों है? क्योंकि देखिए 65 सालों में पहली बार इस ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है और ये ऐसी ट्रीटी है जो 3 फुल स्केल वॉर सर्वाइव कर चुकी है, यानी 1965, 71 और 1999 कारगिल की। लेकिन फाइनली पहलगाम के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए पानी और कूप 99 में ही कर देना चाहिए गवर्नमेंट ने था। अनाउंस किया कि देखिए हम जो है इंडस वाटर ट्रीटी को ट्रीटी सस्पेंड को भी करेंगे cancel। और उसके साथ साथ जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है इंडस वाटर के पानी को कंट्रोल करने के लिए वो हम बिल्ड करना शुरू करेंगे, आपको जो उखाड़ना उखाड़ लो। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। इधर आप देख पाओगे ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूंगा ब्रेव डिसीजन है बाय इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान ने खूब धमकियां दी कि हम कुछ कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बट इंडिया ने देखिए प्री फीजिबिलिटी स्टडी लॉन्च करती है कि चेनाब नदी का पानी हम कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। Meanwhile, India is also conducting a feasibility study to connect the Chenab River to canal systems that feed Indian states of Punjab, Haryana and Rajasthan. The Chenab-Ravi-Beas-Sutlej Link Canal project proposes to divert 15 to 20 million acre-feet of water to these western Indian states. According to reports, several other water storage and run-of-the-river projects will be fast-tracked to utilize more water from the river system for agricultural as well as industrial purposes. As far as Jammu and Kashmir is concerned, let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. और इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन यूएन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश ने बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि देखिए इंडिया ने 65 साल पहले इंडस वाटर ट्रीटी गुड फेथ में एंटर की थी। पाकिस्तान ने 3 वॉर्स और हजारों टेरर अटैक्स इंडिया पे इन्फ्लिक्ट करके इस गुड फेथ को वायलेट किया है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट इंडियंस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक्स का शिकार बने हैं। इसलिए हमारे पास पूरा कॉज है अब इस ये ट्रीटी को नाटक करेंगे। Our position on Indus Waters Treaty has been consistent. IWT, as I had said earlier as well, it stands in abeyance in response to Pakistan's sponsorship of cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism. इनफैक्ट होम मिनिस्टर अमित शाह तो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। उन्होंने तो बोला कि भैया ट्रीटी कभी भी रिस्टोर नहीं की जाएगी और इंडिया ने ऑलरेडी पाकिस्तान का पानी राजस्थान की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। चैड अलर्ट, मैं एक ऑफिशियल चैड अलर्ट इशू करना चाहता हूं। ये जरा अमित शाह जी के लिए एक चैड अलर्ट जरा जरूर चला दें। थैंक यू वेरी मच। और देखिए सिर्फ ये टेररिज्म वाली बात ही नहीं है जिस वजह से इंडिया ने इस ट्रीटी को अबेयंस में रखा है। इंडिया के लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस भी है इस ट्रीटी को लेके। ये ट्रीटी इनहेरेंटली काफी अनफेयर है क्योंकि आप देखिए नंबर 1 लॉपसाइडेड वाटर एलोकेशन है। 80% पानी पाकिस्तान के पास जाता है, सिर्फ 20% पानी इंडिया के पास आता है। खासकर इसलिए How could Nehru sign something like this? इनिशियली इंडिया ने 25% पानी मांगा था, फाइनल सेटलमेंट Actually, में it's not उसको उससे भी कम surprising. मिला। नंबर 2 He इंडस वाटर ट्रीटी के did अंदर so इंडिया much सिर्फ rubbish. लिमिटेड रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है रिवर्स पे, लार्ज रिजर्वॉयर्स के बिना। तो बड़े-बड़े डैम्स, बड़े-बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिससे कि इतनी बिजली नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के लिए जनरेट हो सकती है, उस तरह के प्लांट्स इंडिया बना ही नहीं सकता। जब भी इंडिया इस तरह के पावर प्लांट बनाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इसको आर्बिट्रेशन में घुसेड़ देता है। उसके साथ साथ 2023 और 2024 दोनों में इंडिया ने फॉर्मली नोटिफाई किया था पाकिस्तान को कि भाई हमको ये ट्रीटी अमेंड करनी है, क्योंकि भाई 1960 की दुनिया 2024 की दुनिया बिल्कुल अलग है। कितना क्लाइमेट चेंज हुआ है, कितना डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है, कितनी टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई है, ये सारी चीजें नहीं कंसिडर की गई थी जब इस ट्रीटी को 1960 में ड्राफ्ट किया गया था। हर एक मैच्योर लीगल ऑर्डर ये एक्सेप्ट करता है और इस चेंज का एक लैटिन नाम भी है, रिबस सिक स्टैंटिबस, यानी कि जब दुनिया की फाउंडेशंस बदल जाती है, जब दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं तो कोई भी डील अगर स्ट्राइक की हो तो उसको दोबारा एग्जामिन करना भी इन चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए जरूरी है। तो पहलगाम के पहले भी इंडिया ने 2 फॉर्मल नोटिस इशू कर रखे थे इस ट्रीटी को चेंज करने के लिए। दोनों का जवाब पाकिस्तान ने नहीं दिया। तो ये कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं था, ये एक डिलिबरेट और अनहरीड सीक्वेंस का फाइनल स्टेप था। ये तब लिया गया जब सारे नेगोशिएशन के इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिए और आज ये साले रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी को slap that weird guy. I don't know why. I just want to. ये तो वही हो गया कि जेफरी एप्स्टीन डिग्निटी ऑफ यंग गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है और इंडिया ने अपने बहुत सारे इंडस रिवर सिस्टम से रिलेटेड जो उनके प्लान्स हैं उनको फास्ट ट्रैक करना भी शुरू कर दिया। इंडिया ने चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज जैसे रिवर से कनेक्टेड कैनाल प्रोजेक्ट्स के लिए भी प्री फीजिबिलिटी स्टडी ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि 10 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान का 25% सप्लाई पानी का कम कर दिया जाए और इनकी फटी पड़ी है, आप देख सकते हैं। One day the water flowing through Marala was 1500 cusics, then it became 78,000 cusics, and then it fell down to 1500 cusics, and not one drop of rain to explain that. So the only thing that explains this phenomenon is that someone else, who's not Iqbal Solanki, has his hand on the tap that controls his water. और इनकी फटी क्यों पड़ी है? इनकी फटी इसलिए पड़ी है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का सबसे वाटर डिपेंडेंट देशों में से एक है। नंबर्स देखिए, पाकिस्तान की 90% से ज्यादा फूड प्रोडक्शन इंडस रिवर बेसिन पे डिपेंड करती है। 10 में से 9 पाकिस्तानी इंडस बेसिन में रहते हैं। इंडस सिस्टम पाकिस्तान की जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर रफली 65% पाकिस्तानी लेबर फोर्स एम्प्लॉय करती है और रफली 25% जीडीपी को अकाउंट करती है। पाकिस्तान की स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 30 दिन की रिवर फ्लो की है, यानी डिस्ट्रप्शंस के लिए पाकिस्तान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वल्नरेबल है। 80 से 90% इरिगेटेड एग्रीकल्चर तीनों वेस्टर्न रिवर्स पे डिपेंड करती है, इंडस, झेलम और चेनाब। और इंडिया ने जो ट्रीटी सस्पेंड की है उसके बाद से देखिए सिर्फ 1 साल के अंदर पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिपोर्ट
रिपोर्ट आई है कि इंडस रिवर सिस्टम से ड्रॉन वाटर में 13% ईयर ऑन ईयर शॉर्टफॉल आ रहा है। अर्ली खरीफ सीजन में नियरली 21% वाटर शॉर्टेज आई है। पंजाब और सिंध प्रोविंसेस में की रीजन्स में 20% रिवर फ्लो का ड्रॉप हुआ है। कॉटन प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 30% ड्रॉप हुआ है। व्हीट कल्टिवेटेड एरिया 10.37 मिलियन हेक्टेयर से गिर के 9 मिलियन हेक्टेयर तक आ गया। प्रोविंस में वाटर शॉर्टेज 62% तक आ गया है और इसलिए पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है और इसलिए अचानक से इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपना बाप बना लिया है, क्योंकि इस समय इंडिया का जो सबसे पावरफुल इमीडिएट लीवर है पाकिस्तान के खिलाफ वो है इंडस वाटर ट्रीटी। इनफैक्ट इंडिया ने थोड़े समय के लिए हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी पाकिस्तान के साथ शेयर करना बंद कर दिया है। इससे क्या होता है कि भाई फ्लड वार्निंग्स, रिवर फ्लो मेजरमेंट्स, ग्लेशियर मेल्टिंग डेटा, रिजर्वॉयर लेवल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ पाकिस्तान को नहीं मिलता। और ये अगर बंद हो गया तो इसका इंपैक्ट क्या है कि पाकिस्तान की तारबेला और मंगला जैसे क्रिटिकल रिजर्वॉयर्स मैनेज करने की एबिलिटी बहुत खराब हो जाएगी। फ्लड्स का कोई अपस्ट्रीम वार्निंग नहीं आएगी, अचानक से इनको फ्लड हिट कर जाएगा, इनको पता भी नहीं चलेगा। इरिगेशन प्लानिंग और हाइड्रो पावर जनरेशन मैनेजमेंट ये सब हैम्पर हो जाएगी। पाकिस्तान की काफी मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रेडिक्टेबल इंडस वाटर फ्लोज पे डिपेंड करते हैं। ट्रीटी गारंटीज के बिना इनकी कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंपॉसिबल हो जाएगी। रिपोर्ट्स कहते हैं कि इंडिया ने ऑलरेडी वेस्टर्न रिवर्स पे हाइड्रो पावर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम एक्सेलरेट कर दिया है और अगर अगले 10 सालों में इंडिया ने वेस्टर्न रिवर्स पे स्टोरेज डैम्स बिल्ड कर दिए तो इंडिया को पाकिस्तान से डाउनस्ट्रीम फ्लोज रेगुलेट करने की फिजिकल एबिलिटी मिल जाएगी और उसके बाद तो पाकिस्तान के गोटे इंडिया के हाथ में। और देखिए पाकिस्तान का जो मेल्टडाउन हो रहा है वो कह रहे हैं कि नहीं आप ये सब नहीं कर सकते, ये तो ट्रीटी है हमारी, आप इस तरह से ट्रीटी को नहीं तोड़ सकते, आप इस तरह से हमारा पानी नहीं रोक सकते, हम गांड कैसे धोएंगे। देखिए इसके रिस्पॉन्स में मैं पाकिस्तान को एक 3000 साल पुरानी सेइंग कोट करना चाहता हूं। कहावत आज भी उतनी सच है जितनी 3000 साल पहले थी। कहावत यह है, द स्ट्रॉन्ग डू एज दे विल एंड द वीक सफर एज दे मस्ट। जो ताकतवर होता है वो जो चाहे कर सकता है और जो कमजोर होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बल्कि वो ताकतवर की दादागिरी झेले। 1000 साल पहले आपके पास यानी इस्लामिक इन्वेडर्स के पास बहुत ताकत थी। जब आपके पास ताकत थी तो आपने उस ताकत का क्या इस्तेमाल किया? आपने हमारे मंदिर तोड़े, आपने हमारे लाखों लोगों को कन्वर्ट किया जबरदस्ती, आपने हमारी लाखों औरतों को किडनैप किया और अफगानिस्तान और बगदाद के मार्केट्स में बेच दिया। आज हमारे पास पावर है, उस समय हम कमजोर थे, हम बटे हुए थे, आज हम यूनाइटेड हैं। आज हमारे पास आपसे 4 गुना बड़ी आर्मी है और आज हमारे पास पावर है। तो आज देखिए, आज हम आपके घर में घुस के आपके पिछवाड़े में बम डाल सकते हैं और आपका पानी भी रोक सकते हैं। भैया ये लेसन तो आप ही से सीखा है हमने। जहां जहां आप पावर में रहते हैं आप पूरी दादागिरी करते हैं, सारी माइनॉरिटीज को साफ कर देते हैं, सारे दूसरे रिलीजन को मार देते हैं। लेकिन जब आपके पास पावर नहीं होती तो आप ट्रीटीज की बातें करते हैं, आप इस्लामोफोबिया का रोना रोते हैं। अरे घंटा साल है। और देखिए पहली बात, इंडिया को यूएन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लीगल प्रेसिडेंट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी इंडिया के पास लीगल फाउंडेशन भी है इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने का। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 जो 2001 में पास किया गया था 9/11 के अटैक्स के बाद, और ये यूएन ने यूनानिमसली अडॉप्ट किया था। इससे यूएन हर एक मेंबर स्टेट को ऑब्लिगेट करती है कि वो अपनी टेरिटरी दूसरे स्टेट्स के खिलाफ आतंकवादी एक्ट्स के लिए नहीं यूज करेंगे और पाकिस्तान एग्जैक्टली यही करता है। यानी पाकिस्तान उस ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान का लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और टीआरएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को खुली छूट दे रखी है। यूएन इंटरनेशनल लॉ कमीशन के आर्टिकल्स ऑन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट्स, उनमें आर्टिकल्स 22 और 49 to 54 अलाउ करते हैं एक इंजर्ड स्टेट्स को, जो इंडिया है, कि वो काउंटर मेजर्स ले सके उस स्टेट के खिलाफ जो इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए रिस्पांसिबल है, जो पाकिस्तान है। यूएन कहता है कि काउंटर मेजर्स इन क्राइटेरिया को मीट करें, नॉन फोर्सेबल, जो कि इंडिया मीट करता है क्योंकि वाटर डेटा विड्रॉल मिलिट्री फोर्स नहीं है। प्रोपोर्शनेट, ट्रीटी सस्पेंड कर रहा है इंडिया वर्सेस जो हजारों लाइव्स टेरर अटैक्स में इंडिया ने खोई है, तो ये प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टेड एट रिस्पांसिबल स्टेट, इंडिया स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, चाइना को नहीं कर रहा, अफगानिस्तान को नहीं कर रहा, श्रीलंका को नहीं कर रहा, नेपाल को नहीं कर रहा। एम्ड एट इंड्यूसिंग कंप्लायंस, इंडिया की एक्सप्लिसिट कंडीशन है पाकिस्तान टेररिज्म बंद करे। वेरी सिंपल, रिवर्सिबल, अगर पाकिस्तान ने टेररिज्म बंद कर दिया तो इंडिया इस ट्रीटी को वापस लागू कर सकता है। तो इंडिया इन सारे क्राइटेरिया को मीट करता है। उसके साथ साथ इनकी एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है यूएन की कि एक स्टेट लॉफुली इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से रिफ्रेन कर सकती है अगर उसके एसेंशियल इंटरेस्ट को ग्रेव और इमिनेंट पेरिल हो और कोई दूसरा लॉफुल मीन अवेलेबल नहीं हो। इंडिया क्रेडिबली आर्ग्यू कर सकता है कि डेकेड्स की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पहलगाम मैसेकर में कल्मिनेट होती है और ये एग्जैक्टली उसी इमिनेंट पेरिल को रिफ्लेक्ट करती है। इंडिया ने हर तरह की दोस्ती ट्राई की, हर तरह की डिप्लोमेसी ट्राई की है, लेकिन उन्होंने आतंकवाद बंद नहीं किया। और इंडिया ने फाइनली एक मैसेज क्लियर कर दिया है पाकिस्तान को कि अगर आप हमारे लोगों को मारेंगे तो हर एक चीज टेबल पर है। दूसरी बात, ये साले आईवीसी क्लेम कैसे कर रहे हैं? सबसे बड़ा हड़प्पन साइट राखी घड़ी, ये तो भारत में है। हंड्रेड्स ऑफ मैच्योर हड़प्पन साइट्स भारत में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। 1400 में से 900 आईवीसी के जो साइट्स हैं वो तो भारत में है। इसी वजह से बहुत सारे स्कॉलर्स इसको सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं कहते, लेकिन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं या सिर्फ सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं। आप हड़प्पा को, मोहनजोदारो को, राखी घड़ी और लोथाल से अलग नहीं कर सकते, वो सब एक कल्चर है। तो अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्लेम करना है तो आपको श्री राम को, भगवान कृष्ण को और भगवान शिव को भी क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये एक तरह से मीम तो है, हम हंसते भी हैं पाकिस्तानियों पे, लेकिन इस बात को सीरियसली भी लेना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के जो मास्टर्स वेस्टर्न देशों में बैठे हुए हैं या चाइना में बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्लेम कर ले ताकि हम वो इंडिया से छीन सके, फिर हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर सके। तो ये हमको होने नहीं देना है। और यहां पर आती है हमारी रिस्पांसिबिलिटी और आपकी रिस्पांसिबिलिटी एज एन इंडियन सिटीजन और somebody who loves India कि इंडिया को ये डिबेट रिगरस स्कॉलरशिप, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और कॉन्फिडेंट सिविलाइजेशनल स्टोरी टेलिंग के थ्रू जीतनी पड़ेगी। अगर इंडिया अपनी कहानी खुद नहीं बोलेगा तो फिर पाकिस्तानी बोलने लगेंगे और ये झूठी कहानी बोलेंगे। और इसीलिए फाइनली आई वांट टू लीव यू विद जगजीत सिंह ने ये जो कहा था पाकिस्तानियों के बारे में, सुन लीजिए। भारत और पाकिस्तान की गायकी में क्या फर्क है? भारत की गायकी पाकिस्तान की एक ही गायकी है, वो यहीं से गए सारे, उनकी अपनी कोई गायकी नहीं है। एंड फाइनली देखिए, वीडियो खत्म करने के पहले मैं चाहता हूं कि हम सब
रिस्पॉन्सिबिलिटी ले said. इंडिया की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको ओन करने के लिए और पाकिस्तानियों को इससे लात मार के बाहर निकालने के लिए। तो आप एक काम कीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, स्टार्ट क्रिएटिंग सोशल मीडिया कंटेंट ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन और कैसे ये एक हिंदू सिविलाइजेशन है। उसके एडिट्स बनाइए, उसके मीम्स बनाइए, उसके पोस्ट बनाइए और मेरे साथ शेयर करने शुरू कीजिए। तो आपके बेस्ट सबसे टैलेंटेड आईवीसी एडिट्स जो हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एडिट्स जो हैं, जो क्लियरली हिंदुइज्म से जुड़े हुए हैं, उनको आप बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए। ईमेल पर मुझे, इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए, मुझे ट्विटर पर टैग कीजिए। मेरे सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जो आपके बेस्ट आईवीसी के एडिट्स रहेंगे उनको मैं खुद इस शो पे प्ले करूंगा और शाउट आउट दूंगा। तो जरूर भेजिए। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक के लिए आप सबको एक सेकंड प्रणाम। Secular pranam आपको भी. You heard him. Make your edits, make your reels, talk about it. These guys are on a very sad, pathetic mission to try to own the Indus Valley civilization, which does not belong to Pakistan from any angle, in any way, shape, or form. Sadly, just two of the cities of that, two of the, you can say, larger cities of that civilization, unfortunately landed up in their area. Has nothing to do with their culture or their people, and they are total defendants of this Abu Qasim or whatever his name was. Jo bhi hai. So this whole natak that they are, this like entire toolkit, Indus Valley civilization toolkit that they've now, started activating, like just shut it down. Whenever you guys see it, whenever you hear of it online, just shut it down. It's just ridiculous. It's just ridiculous. And please, like I was saying, the biggest cities of the civilization are all in India. Okay. And Rakhigiri is one of the biggest, not one of the, I think it's the biggest one. And this is exactly what they were discussing on the Charvak podcast. So go and watch that episode. Go and watch that episode. It is with a lady who is from the team that excavates these sites and this entire, civilization ka areas and cities and all of that on ground. So it's all directly from the horse's mouth. And this is, it just boggles my mind how this country is so full of crooks. I honestly kind of, a part of me feels bad for the poor people on ground who are being tortured, and like they don't know any better. They don't know any better कि हाँ light तो जाती है, पानी तो जाता ही है दिन में इतने घंटे या इतना दूर. Like they're still living in, I don't know, the 50s, 60s. They have seen zero development in their villages, in their regions, because जो भी उनको मिलता है IMF से, जहाँ से भी, वो सब इनके आर्मी वाले खा चुके हैं पैसे इस कंट्री के, राइट? इनके पॉलिटिशियंस, इनके लीडर्स. इतनी फ्यूडल सोसाइटी है. They still have slaves. They still have slaves, unpaid labor that all these feudal landlords and all. I mean, there was a whole documentary on it. You can look it up on YouTube. It's just such archaic practices and mentality, and they will do everything in their power to maintain the conflict economy that they've got going. Anything that happens, blame it on India and get the Awam excited and behind them. Anything, the same people who were probably Imran Khan supporters, who, another moron in my opinion, but anyway, he was at least someone who stood up to their army for a change. Even those people who were his supporters suddenly will change their thing, and who hated the army for putting him in jail will suddenly be like, oh, our army is amazing, when their army is fighting India. So I mean, it doesn't take Einstein to figure this out. I don't know how dumb you have to be to not get that your army just keeps playing the India card whenever they want your support, because they are losing the trust of the people after what they did to Imran Khan. So anyway, but there's only so much actually, there's no point. You can't debate with this thing, because apparently intelligent Pakistanis don't exist. Oh, as sad as that sounds. So they will do everything. अब Indus Valley Civilization Toolkit activate हुई है, कल कुछ और activate होगा. They will do everything to try to get this Indus Water Treaty back in practice. Ain't gonna happen. I hate to break it to them. I mean, I think they've got the bad news from every possible person. I'm not the only one. Hate to break it to them, but ain't gonna happen. Y'all had 3 wars and countless terror attacks in the bag before we touched the water treaty. We should have just put it in abeyance in 99 after the Kargil war, because honestly, after 3 wars with this country, it was enough to see that kuch good faith mein nahi ho raha hai. 80% water de diya ek to Nehru ne. The amount of damage that Nehru has done to India, and when everyone voted for Sardar Patel to be the PM, I don't know why Gandhi had to bloody step in and put Nehru as what was the need, and why did Sardar Patel accept that? I feel like he should have pushed back and said, I'm sorry, but everyone wants me to be the PM and I'm going to take charge of the nation. We would have been a completely different country. And I just, like, every time these things come
in front of me, I get so irritated with Nehru. The amount of bullshit that he did as PM, just irreversible bullshit that that man signed and gave away. I mean, he didn't accept a seat in the Security Council. Nahi China ko de do, nahi China. What the hell was wrong with that man? And his entire family now. Like everything damaging to India has been done by the Nehru Gandhi family. Everything damaging. Just don't even get me started. Musa. This was hilarious though. the way Sham trolls and roasts them, I just love it. It's hilarious. So yeah, whenever I release a video like this, I am prepared for whatever hate will come my way, because I know there's tons of it out there. But it only comes from people who are ignorant and wish to stay ignorant, because they find comfort, they find a deep level of comfort in that ignorance, and so be it. It's not my job to make them see the light. But you and I, as Indians, need to be aware. We need to share this. We need to participate in the conversation. We need to do whatever we can to, like Sham said, to own our narratives and to be responsible citizens that play their part. So hence these reactions, I love doing them and I love covering these topics. So let me know if there's any other video I should get to, and I will see you in the next one. Take very good care of yourselves. Make that content and those reels like Sham said. I might make some, but go out there and post and tag him and go watch that episode of Charvak Podcast. Take care of yourselves. Live long and prosper.